evening, everyone. I would like to thank you for taking out time on this Friday evening to attend this important webinar on COVID-19 and respiratory system. This webinar is jointly hosted by Medanta Medicity Gurgaon and Khushi, an NGO based out in Delhi. Medanta Medicity has a massive campus of 2.5 million square feet, providing 16,000 plus beds in house facility for over 22 plus super specialities. Each floor is dedicated to a specialized to offer independent hospitals within the hospital, yet with the comfort of collaborative effort to address complex cases. Khushi is a national level NGO working in the space of education, health, livelihood, and economic empowerment in 10 states of India. To begin today's session, I would like to introduce all of you to Dr. Ashish Kumar Prakash from Medanta Medicity. Dr. Prakash has been associated with Medanta since 2014. He has done pulmonary medicine training from various topmost colleges and institutes of India. Dr. Prakash has done his MBBS from MGM Medical College, Jamshedpur, DTCD from Patel Chest Institute, DNB from Leelavati Hospital, Mumbai. Dr. Prakash is a fellow of American College of Chest Physician, USA, and Asia Pacific Society of Respirology, member of ERS and Life, member of National College of Chest Physician, Indian Chest Society, and Indian Sleep Disorder Association. He has also cleared FCCS and he has also cleared European diploma in adult respiratory medicine held in Amsterdam. So I would now request Dr. Prakash to begin this session. Thank you. Good evening, everybody. I think I would like to make this session more and more interactive. This is webinar, and I don't have any slide to share with you. I would like to anybody can ask anytime like this. मेरे हिसाब से बेस्ट यही होता है कि the queries which I can sort out, जो भी आपके queries होंगे, who raises it. I'm not technically so advanced, तो बीच में अगर कुछ हो तो they will help me. So I'll start regarding this corona. अभी देखो, this is today era is pandemic of this COVID. तो शुरुआत करते हैं what is COVID and what is corona. थोड़ा सा एक relation होना चाहिए. COVID is coronavirus disease. This is the disease what we call it is COVID. And corona ये disease किससे है? That is called SARS-CoV-2. तो ये जो कोरोना वायरस फैमिली की ये जो RNA वायरस है जिसका नाम SARS-CoV-2 है, because इसके 3 और ये क्या बोलेंगे पूर्वज हुए जो थे. एक मर्स था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स था, हेलो आ रही आवाज? हाँ, तो ये इसीलिए इसका नाम सार्स कोरोना वायरस है, और इससे जो डिजीज हो रही है उसका नाम है कोविड, कोरोना वायरस डिजीज 19, बिकॉज ये वुहान सिटी में 2019 दिसंबर से शुरू हुआ. और इसकी पैंडेमिक, WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया मार्च 2011 में 2020 में. और इसकी आज के टुडेज एट टिल नाउ आई थिंक हम लोग सबके पास डेली पेपर में और न्यूज़पेपर में डाटा आते रहते हैं. अभी हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अमेरिका में है, सेकंड हाईएस्ट ब्राजील में है, और हम लोग थर्ड मोस्ट पे हैं. आज अगर सुबह का मैं न्यूज़ याद करूं तो आज भी सुबह 75,000 आई थिंक 760 केस टुडे यस्टरडे 24 आवर में डिटेक्ट हुए. तो हमारे पूरे देश में इतने तेजी से फैल रहा है ये कोरोना. उसका कारण है कि मुझे लगता है ये वायरल डिजीज है जिसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है. इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि अब हम लोग आई थिंक सिंस लॉकडाउन हमने बहुत ही रियायत बरती, बहुत ही, मतलब मैं टीबी चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं बोलूँ कि जितना सावधानी और जितना सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग ये हम लोग मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, इसका अगर हम लोग 20 to 25% भी मेंटेन करें तो टीबी रेडिकेट हो जाए. तो इतने प्रिकॉशन के बावजूद भी ये काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है. इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वायरल फीवर की तरह ही है. ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस डिजीज है कि हम लोग इसको बहुत हो हल्ला मचे. अगर आप इसकी मोर्टेलिटी देखोगे, मॉर्बिडिटी देखोगे, मेडिकल साइंस में मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी ऐसे डिफाइन होती है कि ये डिजीज अगर मान लो इसने 100 लोगों को इन्फेक्ट किया
उसमें भी इन्फेक्शन और डिजीज में भी अंतर है। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, अगर हम लोग यहाँ 100 जने बैठे हुए तो हो सकता है 100 जनों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन उसमें से डिजीज वो हुए जिनको सिम्टम आया। इसलिए आपने सुना होगा दिल्ली में 23% के आसपास लोग एसिम्टोमेटिक कैरियर है। तो इसका मतलब वो इन्फेक्टेड तो थे कोरोना वायरस से, लेकिन वो डिजीज नहीं थे। उनके पास कोरोना वायरस आया लेकिन उससे कोई हार्म नहीं किया, बस अपना एंटीजन था, कोरोना की एंटीजन है, उसने एंटीबॉडी बनाया और आराम से निकल गया। तो दैट पेशेंट है, जब उस पेशेंट ने कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी भी डेवलप कर लिया, उसको कोई सिम्टम भी नहीं है, तो वो इन्फेक्टेड था पर डिजीज नहीं था। ये पहला कैटेगरी हो गया। उसके बाद जो इन्फेक्टेड हुए और डिजीज भी हुए, तो अगर मान लो हमारे 1000 हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें से हो सकता है 50 लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, वो डिजीज नहीं, उनकी एंटीबॉडी पॉजिटिव मिल जाएगी 14 दिन के बाद, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं चला। दे मे बी कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। हालांकि कुछ डाटा ये भी बोलती है कि जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनकी इन्फेक्टिविटी खुद भी कम होती है। उसका सेकंड आता है अपना कोरोना के केस में इन्फेक्शन है और जिनको डिजीज भी हुआ, इससे लेके एक सीवियर केस तक, और हमने सब देखे हैं इस कोरोना के वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा रैपिड फैला है ये। अभी तक हमारे देश में भी करीब 3-3.5 लाख लोगों को हो रखा है। तो इतना फास्ट ग्रोइंग है कि इसका स्पेक्ट्रम जितना वास्ट है, माइल्ड टू सीवियर और टू डेथ ऑल्सो। तो मोर्टिलिटी डिफाइन होती है मेडिकल टर्म में कि उस डिजीज के वजह से लोग मरे कितने, तो इसकी मोर्टिलिटी हार्डली 1 to 2% जैसी होगी। और मॉर्बिडिटी डिफाइन होती है उस बीमारी के वजह से कितने लोग अस्पताल गए, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिडिटी, कि अस्पताल जाने की, बीमार हुए। मतलब हम लोग अगर 1000 पेशेंट थे, उसमें से 800 को तो बस एसिम्प्टोमेटिक होके निकल गया, उसमें से 200 पेशेंट ऐसे हुए जिनको डिजीज भी हुआ और इन्फेक्शन भी हुआ। तो इन्फेक्शन के बाद जब डिजीज हुआ तो फिर हमने कैटेगराइजेशन की कि आप माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सिम्प्टोमेटिक हो। कहने का मतलब, मुझे सर थोड़ा सा फीवर आया है, मुझे थोड़ी सी खांसी है, थोड़ा सोर थ्रोट है, थोड़ी बहुत डायरिया हुई, लेकिन मैं इतना ज्यादा सिक नहीं हूं कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, तो इसकी मॉर्बिडिटी भी नहीं हुई। ये पेशेंट माइल्ड सिम्प्टोमेटिक था, और ऐसे पेशेंट के लिए हम लोगों ने होम केयर पे मैनेजमेंट शुरू किया कि आप पेशेंट को होम आइसोलेशन रखो, इसको होम केयर के तमाम मैनेजमेंट दो। हमारे जैसे मेदांता से होम केयर पैकेज होता है, 14 पेशेंट को 14 दिन तक अपनी हम लोग निगरानी में रखते हैं, उसके वाइटल्स और पैरामीटर्स सारे चेक करते हैं। तो स्टार्ट होती है डिजीज, इन्फेक्टेड, डिजीज, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और ये आईसीएमआर की पूरी क्लिनिकल गाइडलाइन है कि हम जो डिजीज है और नॉन डिजीज है उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है सबको, बट एसिम्प्टोमेटिक कैरियर निकल गए। माइल्ड सिम्प्टोमेटिक वाले वैसे पेशेंट हुए जिनको माइल्ड सिम्टम है, जैसे बुखार आया, 2 से 3 दिन बुखार आ गया, उसके बाद खांसी हुई, सोर थ्रोट हुआ, ये सारे माइल्ड सिम्प्टोमेटिक में हो गए। तो इनको हम लोग घर पे मैनेज कर सकते हैं। इसलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या देखा इधर 5-6 महीने की अपने कोरोना की हम लोगों की प्रैक्टिस में, कि सबसे ज्यादा पेशेंट को मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया, जैसे मैं खुद भी कोरोना सर्वाइवर और वैरियर दोनों, 2 जून को मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, 14 जून को मेरा निगेटिव आया। उस दौरान भी मैं होम क्वारंटाइन में था और मरीज देखता था, मतलब घर पे रह के मैं होम केयर वाले मरीज देखता था। इट गिव्स मी लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैं खुद मरीज को अपने घर के बच्चों की वीडियो दिखाता था कि देखो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें बच्चों को कुछ नहीं हुआ है कोरोना की वजह से। इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा अपने बच्चों के लिए डरते हैं कि क्या होगा बच्चे, हमें तो चलो ठीक है, बच्चों को क्या होगा। तो बच्चे बहुत अच्छे रिस्पॉन्डर होते हैं, मामूली सी सर्दी खांसी आएगी और बस ठीक हो जाएंगे। तो उनको कुदरतन इतनी ज्यादा इम्यूनिटी है कि कोरोना उनका कोई हार्म नहीं करता है। उसके बाद फीमेल को भी बहुत दो मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी पाई गई है, लेकिन मेल की तुलना में फीमेल की मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी कम पाई गई है। तो सबसे ज्यादा सर्वाइवल, हाँ कुछ हेलो, सबसे ज्यादा जो कोरोना की मॉर्बिडिटी हुई या मोर्टेलिटी हुई, तो वो हमने देखा करीब 50-70s के आसपास के मेल में ज्यादा हुई, दो फीमेल में भी हुई, बच्चों में भी, लेकिन इनके नंबर्स बहुत कम है। तो जो बेस्ट रिस्पॉन्डर है कोरोना के वो बच्चे हैं, उसके बाद फीमेल है, उसके बाद मेल है, और उससे ज्यादा एल्डरली है। तो जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर,
तो माइल्ड अगर कोई पेशेंट है जिसको सिर्फ सिम्टम है, माइल्ड सिम्टम है, उसमें सैचुरेशन वगैरह फॉल नहीं कर रहा है और पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोमॉर्बिडिटी इन द सेंस उसको डायबिटीज नहीं है, उसको हाइपरटेंशन नहीं है, उसकी कोई किडनी की बीमारी नहीं है, वो डायलिसिस पे नहीं है, कोई लंग का कैंसर नहीं है और किसी भी तरह का कैंसर नहीं है, तो ये सारे कोमॉर्बिडिटी नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमने कोरोना में देखा, ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोमॉर्बिडिटी बन के आई कोरोना के चलते। अगर किसी पेशेंट को ओबेसिटी है तो उसकी भी मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी बढ़ी विद रिस्पेक्ट टू अदर नॉर्मल पेशेंट। तो अगर ये सारे कोमॉर्बिडिटी है माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट में, माइल्ड सिम्टोमेटिक जैसा मैंने बताया, मामूली फीवर है, सोर थ्रोट है, खांसी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह ठीक है, तो माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट विथ कोमॉर्बिडिटीज, इनमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से उसका भी इंडिकेशन है कि आप घर पे पेशेंट को मैनेज करो, होम केयर करो, होम आइसोलेशन होता है, मतलब पेशेंट सारे आइसोलेशन के गाइडलाइन फॉलो करेगा लेकिन घर पे रहेगा। घर पे रहने का बहुत सारा फायदा मैंने देखा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको मिलता है, मोरल सपोर्ट मिलता है, दूर से ही, घर के कमरे के बाहर से ही, लेकिन बच्चों के आसपास है तो वो आई थिंक 50% उसका प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है। इसी पेशेंट को अगर आप हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर तो माइल्ड पेशेंट जो सबसे ज्यादा हुए, अगर 1000 पेशेंट कोरोना के थे उसमें से 100 पेशेंट हमारे नॉन डिजीज में निकल गए, तो करीब करीब 80% के आसपास माइल्ड सिम्टोमेटिक में ही पेशेंट निकल गए। वो पेशेंट माइल्ड था, उसको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं थी। तो ये जो पैनिक कंडीशन आता है, जिसके वो क्यों आता है, ये जो माइल्ड पेशेंट है, जो सिम्टोमेटिक है बट माइल्ड है, वो हॉस्पिटल की ओर रस करते हैं कि मुझे अभी हॉस्पिटल में एडमिट कर दो जस्ट बिकॉज कि आई एम स्केयर्ड, मुझे कोरोना हो गया है, घर को नहीं होना चाहिए वो। तो इस पैनिक कंडीशन की वजह से हॉस्पिटल में जो सीवियर पेशेंट जिनको बेड की रिक्वायरमेंट होती थी वो दिक्कत होती है। तो माइल्ड पेशेंट के लिए अगर उसको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है तो HCQS के साथ और वाइटल मॉनिटरिंग करो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन सैचुरेशन, और कुछ केसेस में पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी पाया गया तो डी डाइमर भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको कि देखना चाहिए। तो माइल्ड पेशेंट को हम होम आइसोलेशन पे वाइटल मॉनिटरिंग लाइक पल्स रेट, बीपी, सैचुरेशन, ये सब मॉनिटरिंग करके हम उनको घर पे बहुत अच्छे से देखभाल करके, और करीब करीब मुझे लगता है मेदांता में हमने होम केयर में करीब 1000 पेशेंट के आसपास देखे होंगे जो माइल्ड सिम्टोमेटिक थे, उनका वाइटल मॉनिटर किया डेली, हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर से बात हुई और सैचुरेशन मॉनिटर करके हमने घर पे ऐसे पेशेंट निकाले। अगर ये हॉस्पिटल जाते तो हो सकता है सीरियस पेशेंट जिसको बेड चाहिए था उसकी बेड ऑक्यूपाई करके रखते। तो माइल्ड पेशेंट के लिए होम केयर, होम आइसोलेशन है ना, और उसमें मोरल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को मिलता रहता है। कमिंग टू मॉडरेट, मॉडरेट पेशेंट वैसे होते हैं जिनको एक्सरे में भी कुछ चेंजेस आ गए हैं और थोड़े निमोनिया के भी पैच आए हैं और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी फॉल करी है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर फॉल करी है, जैसे 95% से कम हो गई, तो उन मॉडरेट केसेस को आईपीडी की जरूरत पड़ती है। आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करो, आईपीडी में केयर करो, उसके लिए भी, उस केस में भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा अभी तक टिल कुछ दिन पहले तक की आईसीएमआर की गाइडलाइन में जो लास्ट पढ़ी होगी मैंने, उसमें HCQS रिकमेंडेड है मॉडरेट केस में भी। रेमडेसिविर वाली दवा भी मॉडरेट केसेस में रिकमेंड की गई है। प्लाज्मा थेरेपी भी अगर चाहे तो दे सकते हैं हम लोग फॉर मॉडरेट केसेस। और इन सारे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में रखना है, मॉनिटर करना है, इनके वाइटल चेक करते रहने हैं। और ये स्टेरॉइड का भी रोल है, 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से स्टेरॉइड का भी मॉडरेट केसेस में रोल है। अगर कोविड निमोनिया हो गया तो स्टेरॉइड भी हमें देना चाहिए। और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन जो क्लेक्सन नाम की दवा है, अगर क्योंकि इसमें जो बहुत ज्यादा पाया गया वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह, वास्कुलैरिटी बढ़ जाती है, तो खून को पतला करने वाली दवाई जिसको लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन बोलते हैं या क्लेक्सिन बोलते हैं, वो देना चाहिए। लेकिन उसके लिए पहले डी डाइमर करा लो, कुछ टेस्ट है। तो जब पेशेंट मॉडरेट है, वो एडमिटेड है हॉस्पिटल में, तो हमें उसके CRP, प्रोकैल, इन्फेक्शन के पैरामीटर देखने चाहिए, एक्सरे देखना चाहिए, CT देखना चाहिए, CT में निमोनिया के चेंजेस हैं, वो फिर हमें मॉडरेट केस को मॉनिटर करना चाहिए और उसकी IPD में इंडोर पेशेंट के रूप में देखभाल करनी चाहिए। लास्ट केस आता है वो सीवियर का। सीवियर केसेस में आईसीयू की जरूरत पड़ती है, पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और फिर अपने को वेंटिलेटर, ये सारे सीवियर केस में मॉनिटरिंग पड़ती है। अभी तक आईसीयू में पेशेंट जितने हैं, मतलब टोटल बात करें ऑन एन एवरेज, एग्जैक्ट डाटा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट हमारा ये मानना है कि अगर पूरे के पूरे
एक कम्युनिटी में 1000 पेशेंट को अगर कोरोना होता है तो उसमें से इन्फेक्टेड हो सकता है 1000 हो, डिजीज्ड हो सकता है 800 हो, और 800 में भी करीब करीब 700 माइल्ड सिम्टोमेटिक ही हो। सिर्फ 100 पेशेंट बच जाते हैं जो मॉडरेट टू सीवियर में आते हैं, उसमें भी मॉडरेट केस में आप मान लो 80% और निकल गए, तो करीब 5 to 10% केसेस ही हैं जो सीवियर में आते हैं और जिनको वेंटिलेटर और एडवांस आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये है कि जो पेशेंट एडवांस आईसीयू केयर की और जिनको एडवांस वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है उनकी मोर्टेलिटी ज्यादा है। बट ओवरऑल माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस और एसिम्टोमेटिक, इनकी मोर्टेलिटी बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग को डरना नहीं है कि कोरोना हो गया अब ये क्या होगा। और आई थिंक इनिशियल डेजेज में जब मुझे हुआ था, 2 जून की बात है, तो उस वक्त काफी पैनिक कंडीशन होता था, मुझे भी डर लगता था कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, ये वाली हालत। तो उस टाइम पे डर ज्यादा था कोरोना का, कोरोना के केसेस कम थे। आज इंडिया में हम व्हाट्सएप पे भी मैंने 1-2 जैसा चैट देखा, आज इंडिया में हमारे पास कोरोना के केसेस 3-3.5 लाख है, लेकिन डर अब मैं देखता हूँ, मैं होम केयर पे पेशेंट से बात करता हूँ तो काम रहते हैं उनको। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, देखो मुझे भी कोरोना हुआ था, मैंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया, मैं नहीं डरा। तो ये डर कम हो गया है लोगों का, केसेस बढ़ गए। लेकिन अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग अब देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना आए हुए ही 6 महीना हुआ, 7, आज अगर 8वां महीना है तो नवंबर से देखें तो 10 महीना हुए कोरोना को आए हुए। अब हम लोग कोरोना के बाद की कुछ डैमेजेस भी देख रहे हैं। अब हम लोग, मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ और हम लोग मेदांता में जब ओपीडी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमें मिल रहे हैं जो रिमोट से, रिमोट इन द सेंस जो यूपी, बिहार, दिल्ली पेरीफेरी से आते हैं। वो कहते हैं कि सर मुझे तो फीवर 1-2 दिन के लिए हुआ था, बट वो उनकी एक्सरे और सीटी पूरी चेंजेस डैमेज लंग की दिखती है। मतलब कि उसको 2-3 दिन के लिए फीवर हुआ है, लेकिन उसने लंग को उसके डैमेज किया। तो ये पेशेंट अगर टेस्टिंग होती और उनकी अवेयरनेस होती तो वो शायद मॉडरेट टू सीवियर केस में था, जिसको उसी वक्त अगर स्टेरॉइड या कोई और दवाई अगर देके ठीक किया जाता तो शायद हमारे पास लंग डैमेज लेके ऐसा नहीं आता। और अब चूंकि दिल्ली एनसीआर में हम उस फेज में आ गए कि हमारे यहाँ तो ओवरऑल ये जो पैंडेमिसिटी थी और जो एक्सप्लोजन था, इसको बोल सकते हैं हम लोग एक्सप्लोजन ऑफ पूरा पॉपुलेशन का, केसेस डेली 2000-3000 आते थे, वो हमारी कम हो गए। लेकिन पेरीफेरी में, नॉर्थ इंडिया में सारे जगह, जैसे यूपी के बेल्ट है, हमारे बिहार के बेल्ट है, इन सब में अभी भी वो एक्सप्लोजन फेज में है। तो डेली बहुत ज्यादा केसेस नंबर है विथ रिस्पेक्ट टू जो टेस्ट किए जा रहे हैं। अब ऐसे पेशेंट्स में वो जो लंग का डैमेज और सीटी लेके आते हैं तो हमें दिखता है बाद में कि यार ये पेशेंट को कोरोना हुआ, इनका लंग में डैमेज हुआ। बट चलो, उसमें भी डरने वाली बात इसलिए नहीं है कि उसको भी हमने बहुत हद तक देखा है कि वो ठीक होता है। स्टेरॉइड वगैरह अगर हम लोग देते हैं तो वो भी रिस्पॉन्ड करता है। तो कोरोना के केस में जो भी मॉडरेट केसेस भी हैं जिनका लंग भी डैमेज हुआ है, उनका भी अच्छा रिस्पॉन्स है। हम ये बोलेंगे सीवियर केसेस में भी अच्छा रिस्पांस है, जो वेंटिलेटर पे गए वैसे पेशेंट की थोड़ी मोर्टेलिटी है, बट ओवरऑल 2 to 5% ही ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें हमें बहुत ज्यादा एडवांस केयर की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल मेरा टेक होम मैसेज आप सबों के लिए यही है कि ये कोरोना एक ऐसा पेंडेमिक है, ऐसा वायरल डिजीज है, जैसे पहले भी हम लोग देखते थे वायरल डिजीज आता है, और जैसे स्वाइन फ्लू आया, कोई भी वायरल डिजीज आता है, हर साल आता है, 1-2 महीने का पीक रहता है, उसके बाद वो सेटल कर जाता है। बस इसमें हम लोग इसलिए पैनिक है, और थोड़ा सा इसमें वस्तु स्थिति भी क्लियर होनी चाहिए कि ये एग्जैक्टली एग्जिस्ट इस पैटर्न में कर रहा है कि बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टिव है। मतलब आप ये समझो कि अब दिल्ली में 23% जो आईसीएमआर का डाटा था, 23% एसिम्प्टोमेटिक कह रहे थे, मतलब उनके शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई थी, मतलब उन लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, डिजीज भले ना हो लेकिन वो इन्फेक्शन थे, बट नाउ दे आर वेल और उनके शरीर में एंटीबॉडी भी है। सेकंड टेक होम मैसेज है कि जो कोरोना के सर्वाइवर हैं, जो जिनको कोरोना हो गया, जिनके बॉडी में एंटीबॉडी है कोरोना की, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने अपना भी ब्लड डोनेट किया, मुझे जो 2 को हुआ था, 2 जून को, 14 जून को नेगेटिव आया, मैंने 1 जुलाई जो डॉक्टर्स डे है, आई फील वेरी प्राइड कि मैंने चलो डॉक्टर्स डे के दिन अपना प्लाज्मा डोनेट किया, तो डेफिनेटली इसने किसी की हेल्प करी होगी। तो ये प्लाज्मा डोनेशन भी आई थिंक अच्छा चीज है, जो जिसके बॉडी में एंटीबॉडी बना हुआ है उसको
थोड़ा फाइट करने में थोड़ा मदद करता है। और अभी तक लिटरेचर, सारी दवाइयों का लिटरेचर, चाहे वो रेमडेसिविर हो या टोसिलिजुमाब हो या कन्वलेसेंट प्लाज्मा हो या HCQS, सारे अभी मेडिसिन ट्रायल रूप में ही चल रहे हैं। अभी किसी का कोई बेनिफिट रोल अभी, चूंकि 9-10 महीने हुए हैं या वैक्सीन भी बोले, सारी दवाइयां अभी ट्रायल फेज में ही है। कॉन्फर्मेटरी कुछ नहीं है कि मैंने कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि नहीं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ठीक करता ही करता है, नहीं रेमडेसिविर ठीक करता ही करता है, नहीं टोसिलिजुमाब ठीक करता ही करता है। ऐसा सारे, एक ट्रायल आती है ड्रग की कि हाँ ये काम करता है, दूसरे ट्रायल पे बोलती है कि नहीं ये काम नहीं करता है, क्योंकि ये मेडिकल साइंस पूरा इवॉल्विंग है और उसमें कोरोना की भी साइंस इवॉल्विंग है। नवंबर में जो हमें बातें पता थी, हो सकता है कि जनवरी में बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पहले आया कि नहीं मास्क है ये है। तो ये बहुत डायनेमिक प्रोसेस है, ये पूरा कोरोना डायनेमिक प्रोसेस है। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, सैनिटाइजेशन, मास्क यूज और हेल्थ हाइजीन, बहुत कुछ बातें सिखाई है। तो नाउ आई थिंक मैं चाहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चंस है तो जस्ट यू शुड शेयर विथ मी। थैंक यू डॉक्टर प्रकाश, इट वाज वेरी इंसाइटफुल। और आपने जिस तरह से मैं अगर पर्सनली भी कहूँ तो मैं खुद काफी पैनिक स्टेट में रहती हूँ, एंड आई एम श्योर कि आपने जो आज बातें बताई, आई एम गोइंग टू, मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो सामने आया है, और हमारे जो अटेंडीज है उन्होंने भी पूछा है कि जैसे एस्थमा या कोई और रेस्पिरेटरी हेल्थ कंडीशन जिनको है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब प्रिकॉशंस किस तरीके के लेने चाहिए या कितना रिस्क है उनके लिए? देखो इस रिगार्डिंग ना, मतलब मैं जैसे हमने, मतलब कि बीइंग अ क्लिनिशियन आई हैव ऑलवेज बीन अ रिसर्चर आल्सो, मैं थोड़ा सा अपना दिमाग रिसर्च में भी लगाता हूँ। और जैसे ये कोरोना का पूरा डायनेमिक्स मैंने बताया, 9 महीने के डायनेमिक्स मैंने समझी, दो इट में भी रंग और प्री मैच्योर्ड होगा, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि इसको बहुत ज्यादा साइंटिफिक वैल्यू है कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज लिटिल बिट डाटा विच आई हैव, हमारे जो अपने हमने थोड़ी बहुत कलेक्ट की है, उसमें मैंने क्या देखा, या मैं ऐसे भी आपसे शेयर करूं। जैसे मैं डॉक्टर आशीष प्रकाश हूँ, मेरी करीब करीब 15 साल की प्रैक्टिस है चेस्ट की। मेरे जो सीनियर है, जो मेरे बॉस है, जो मेरे टीचर है, जो मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ है, यू कैन से, मुझे अभी भी उनसे सीखने का मौका मिलता है, डॉक्टर आनंद जायसवाल। तो उनसे भी मैं, मतलब डेली डिस्कशन होता है मेरा, और हम लोग झगड़ते भी हैं एक तरह से कि उनकी भी 28-30 साल की प्रैक्टिस होगी। डॉक्टर बोनाली दत्ता है जो मेरे साथ यहाँ बहुत दिन से काम कर रही है, काफी सीनियर है, इनकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। तो मैंने इन सबसे पूछा कि सर आपके कितने फॉलोअप पेशेंट, या मैडम आपके कितने फॉलोअप पेशेंट कोरोना लेके आए, या मेरे कितने फॉलोअप पेशेंट, तो ये मैंने देखा कि बहुत कम था। दूसरा जो मैंने पोस्ट कोविड लंग डिजीज में एक मैं रिसर्च चल रहा है, मैं कर रहा हूँ, उसमें भी मैंने देखा कि सिर्फ मेरा, हमारे 60 पेशेंट में सिर्फ एक पेशेंट ऐसा था जो हमारा फॉलोअप था, जिसको प्रीवियसली लंग डिजीज थी, या आस्थमा थी, या सीओपीडी था, या लंग डिजीज के हिस्ट्री ऑफ कॉक्स थी। तो ओवरऑल अभी तक टिल डेट ये मेरा इंप्रेशन है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, लेकिन ये मेरा इंप्रेशन है कि कोरोना फेवर्स हेल्दी लंग। मतलब कि जो लंग डिजीज वाले थे, हमारे जो आस्थमा वाले पेशेंट थे, या जो हमारे सीओपीडी वाले पेशेंट थे, या जो मेरे टीबी वाले पेशेंट थे, वो काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किए कोरोना में। मतलब उनकी कोई, जैसे आस्थमा का कोई एक्सरसर्वेशन मैंने नहीं देखा कि कोई पेशेंट मेरा लेके आओ कोविड का और उसने बोला कि मुझे आस्थमा का एक्सरसर्वेशन हुआ। इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट और मुझे रियलाइजेशन ये लगता है कि बिकॉज ऑफ कोरोना हमारी हेल्थ हाइजीन बहुत अच्छी हो गई, लंग की हाइजीन बहुत अच्छी थी। ये मास्क हम पहनना, सोचो टीबी के लिए हम लोग मास्क बोलते थे पेशेंट को कि बाबा मास्क पहन के आओ, टीबी के मरीज को, वो 2 मिनट में फिर मास्क उतारते। अभी कोरोना के चक्कर में आज हर एक इंसान मास्क पहन रहा है। इतना मास्क पहनने से तो टीबी बहुत दिन पहले ही गुजर जाएगा। दूसरा, अस्थमा का एक्सरसर्वेशन हमने बहुत कम देखा पेशेंट का जो कोरोना के साथ है और उसको अस्थमा का एक्सरसर्वेशन हुआ। रदर जो जीना की गाइडलाइन है हमारी, जो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर जीन अस्थमा हम लोग बोलते हैं, उसमें भी यही मेंशन है कि कोरोना के वजह से कोई एक्सरसर्वेशन, या अभी तक बहुत पहले आया था वो गाइडलाइन, ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिला कि अस्थमा के पेशेंट या टीबी के पेशेंट या सीओपीडी के पेशेंट उनको कोरोना हुआ और एक्सरसर्वेशन लेके आए। एक वजह ये था कि उन्होंने बहुत अच्छे हाइजीन रखे, मोस्ट लाइकली कोरोना की वजह से हम लोग सब मास्क लगा रहे हैं, वो पेशेंट भी मास्क लगा के रखे हुए थे। दूसरा इसका मुझे फैक्टर लगता है, कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसके वजह से एयर क्वालिटी जो AQLI बहुत लो हो गया। मैंने कभी कभी 20 तक देखा, जो कभी गुड़गांव में 30-40 के आसपास होता था।
तो जो क्वालिटी इंडेक्स होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो भी काफी अच्छी हुई है, मतलब काफी हेल्दी इन्वायरमेंट हुआ है। इसकी वजह से भी हमारे अस्थमा और सीओपीडी वाले पेशेंट एक्सेसरबेशन में नहीं आए। ओवरऑल मुझे ये लगता है बीइंग रेस्पिरेटरी फिजिशियन कि अगर हम कोरोना के लिए जो बचाव कर रहे हैं, जैसे मास्क पहन रहे हैं, हेल्थ का अच्छा ध्यान रख रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन, इन सबों के वजह से, और कुछ जैसे आपने ये देखा वर्क एट होम शुरू हो गया बहुत, हम आज ये वेबिनार कर रहे हैं, तो इसके वजह से थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन भी कम हुई है, तो एयर क्वालिटी भी थोड़ी बेटर हुई है। तो मुझे लगता है इससे अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट डेफिनेटली बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज पॉल्यूशन भी कम हुआ होगा, और मोस्ट लाइकली सारे भी जो इंसाइटिक इवेंट होते हैं जो अस्थमा को या सीओपीडी को ट्रिगर फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी कम हुए। थैंक यू, दिस इज ग्रेट। एक और क्वेश्चन है जो शायद इससे रिलेटेड हो सकता है, इट्स अबाउट यूज ऑफ नेजल स्प्रे। तो ये आई डोंट नो इफ ये एक मिथ है, लेकिन आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू इज दैट should somebody has written, should I stop using nasal spray as it may push the virus further up the nose? No, not at all. I don't think so, because if you are using nasal spray, rather मैं बताऊं, nasal spray में दो ही चीज होती है जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, either it is एजिलास्टिन और सेकंड इज फ्लूटिकासोन, मतलब या स्टेरॉइड है या एंटीहिस्टामिनिक है, और इन दोनों का ये रोल कोरोना में। ऐसा नहीं है कि हम ये समझे कि अगर हमने नेजल स्प्रे यूज किया तो हमारे कोरोना होने के चांसेस ज्यादा है, बट ये ऐसी कोई लिटरेचर अभी तक नहीं है मेरे पास, मतलब कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट ओवरऑल मैं ये बताऊंगा कि ये दोनों ही, जैसे कोरोना होता है, बेस्ट है अगर आप नेजल स्प्रे भी लेते हो स्टेरॉइड का, थोड़ा गार्गल कर लिया उसके बाद या रिंस कर लिया माउथ, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आई डोंट थिंक कि उससे फिर ये प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा कोरोना होएगा, आई डोंट थिंक। ओके, थैंक यू डॉक्टर। एक और क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है, सवाल है जिसमें जैसे एस्थमा होता है तो उसमें बेसिकली कॉफिंग होती है या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि वो सिम्टम कोविड का नहीं है? फीवर बहुत या इंपॉर्टेंट, जैसे लोगों को एलर्जीज भी होती हैं, सीजनल एलर्जीज होती हैं, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? योर क्वेश्चन इज वेरी साइंटिफिक, आई थिंक बहुत आई वुड एडमायर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग क्लिनिकल, जैसे मैं अपने जूनियर्स को, ये जो रेजिडेंट उनको ट्रेनिंग देता हूँ, जैसे एक आस्थमा का पेशेंट आता है तो उस आस्थमा के पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री अपने को ये पूछना रहता है फीवर है कि नहीं। अगर वो फीवर नहीं है तो हम लोग बहुत ज्यादा समझेंगे ये आस्थमा का एक्सेसरबेशन, अगर फीवर है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्टिव एक्सेसरबेशन है, और सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रेजेंटेशन या सिम्टम है कोरोना का वो फीवर ही है। फीवर, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ सेंस, लॉस ऑफ स्मेल, नेजल सिम्टम, तो इसमें फीवर एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। अगर कोई पेशेंट, दो बातें इंपॉर्टेंट होगी, एक पेशेंट, अगर वो पेशेंट हमारा पुराना एस्थमेटिक है, और सेकंड वो पेशेंट फीवर नहीं बोलता है, तो फिर अपने को समझना है कि ये एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ आस्थमा। लेकिन वो बोलता है सर आज तक मुझे कभी कोई आस्थमा की हिस्ट्री नहीं है, ना ही मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री है, और अभी मेरा सांस फूल रहा है, जो सीटी जैसी आवाज आ रही है, लेकिन मुझे फीवर भी है, तो फिर हम प्राइमरीली सोचेंगे कि कोविड हो सकता है। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, एंड फीवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिस्क्रिमिनेटिंग बोथ दिस टू। एब्सोल्युटली कभी कोई मेडिकल साइंस में कभी ऐसा नहीं होता कि 100% एब्सोल्यूट कुछ होता है, बट ये फीवर आपको डिस्क्रिमिनेट करने में काफी हेल्पफुल होगा। एंड इन द केस ऑफ एलर्जीज, जिनको बहुत स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है, पोलन या जरा सा सीजन चेंज या पोल्यूशन या ठंडा गर्म हो जाता है, उस केस में भी सेम स्ट्रेटजी होती है या? हाँ, एलर्जिक, देखो कोई भी एलर्जिक सिम्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एलर्जिक सिम्टम है तो उसमें फीवर नहीं होता। अगर फीवर है तो थिंक ऑफ सम इन्फेक्टिव एक्सेसरबेशन है, उसने फीवर ने या उस इन्फेक्शन ने उसके एलर्जी सिम्टम को या उसके अस्थमा को या उसके नेजल सिम्टम को प्रेसिपिटेट किया, एग्रेवेट किया, लेकिन कोई ना कोई इटियोलॉजी थी। जैसे कोई, मुझे एलर्जिक है, मैं पूरे साल छींकता रहता हूँ, लेकिन मुझे अभी वायरल फीवर हुआ तो मुझे फीवर भी आया, छींके थी, नेजल सिम्टम था, लेकिन फीवर भी आया, देन आई कैन से कि ये वायरल फीवर था जिसने मेरे अस्थमा को या नेजल कंप्लेन को एग्रेवेट कर दिया, एक्सेसरबेशन हो गया। ओके। एक और क्वेश्चन इनहेलर के यूसेज से ही आया है, जिसमें अगर इनहेलर को यूज करें तो उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने से कैसे बचाए, और उसको क्लीन रखने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनहेलर, हमारे जो इनहेलर होते हैं, जो फोराकॉट होते हैं,
या सेरोफ्लोम, जो भी मीटर डोज इनहेलर है या ड्राई पाउडर इनहेलर है या एक्यूहेलर है या नेबुलाइजर है या किसी भी फॉर्म का इनहेल्ड मेडिकेशन जो लंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो उसमें 2 या 3 चीज होती है. वन इज ICS, दैट इज कॉल्ड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड. सेकंड इज लामा लावा, लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एगोनिस्ट या लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, मतलब साल्ब्यूटामोल हो गया जो लावा के रूप में हो गया. तीसरा होता है लामा जो टायोट्रोपियम में होता है. यही 3 चीज है जो मोस्टली इसके बीच में सारे कंपोजिशन इधर उधर होते हैं. तो इसमें जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, जो एस्थेलिन हम लोग बहुत प्रोमिनेंट नाम सुनते हैं जानते हैं, ये इनहेलर एस्थेलिन या लेवोलिन का जो इनहेलर है, इसका ब्रोंकोडाइलेशन के अलावा किसी भी चीज से नहीं लेना. ये ब्रोंकोडाइलेशन कराता है, इसका इन्फेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है. दूसरी बात है टायोट्रोपियम मस्करेनिक जो है, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा ड्राइनेस कराता है, बट ओवरऑल इसका आस्थमा में उतना रोल नहीं है, COPD में ज्यादा रोल है. थर्ड है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसको हम लोग सोच सकते हैं कि ये इन्फेक्शन प्रोन कराता है, और कुछ केस रिपोर्ट्स भी है और कुछ लिटरेचर भी है कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से निमोनिया होने का चांस होता है. लेकिन ये सारी बातें निमोनिया विथ बैक्टीरियल निमोनिया के साथ लागू है. जहां तक कोविड का सवाल है, सार्स कोरोना वायरस 2 का सवाल है, आई डोंट थिंक, और ऐसा कोई लिटरेचर है कि ये इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड वायरल इन्फेक्शन को एग्रीवेट करता है. रेदर देन पोस्ट कोविड निमोनिया में, या जो निमोनिया के सिम्टम है, या जो लंग की फाइब्रोसिस हो रही है, या जो कंसोलिडेशन हो रहा है, या जो ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया हो रहा है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का रोल है. बिकॉज ऑफ कोविड जो लंग डैमेज हो गए, उसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रोल है, रेदर देन कॉन्ट्राइंडिकेशन की मैं बात करूं तो आस्थमा के पेशेंट या COPD के पेशेंट जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, या इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट ले रहे हैं, या इनहेल्ड मस्करेनिक एगोनिस्ट ले रहे हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है. रेदर ये हेल्पफुल ही होगा. और मुझे कहीं ना कहीं लगता है शायद ये भी एक फैक्टर हो कि हमारे आस्थमा और COPD के पेशेंट को ज्यादा कोविड नहीं हुआ, हमारे जो फॉलो अप पेशेंट्स थे. बिकॉज हम लोग अल्टीमेटली जिनको कोविड हो रहा है उनको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे रहे हैं ताकि वो लंग का कंसोलिडेशन या निमोनिया ठीक हो. ओके, सो थैंक यू डॉक्टर प्रकाश, आपने काफी इम्पोर्टेंट चीजें हमको इससे रिलेटेड बताई. बिफोर वी एंड दिस सेशन, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू टू सम अप and maybe just give us 2 very important tips to keep ourselves safe from this coronavirus disease. फाइनली मतलब कि जो मेरा टेक होम मैसेज है, मैं ये बोलता हूँ कि इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. इसकी डायनेमिक तुम सोचो 6 महीने से ही आया है, लेकिन इसने बहुत सारे प्रैक्टिसेस चेंज कर दी. या हमारे मेडिकल साइंस की प्रैक्टिस हो, जैसे मैं आज वेबिनार कर रहा हूँ, हम लोग ने तो फेस टू फेस मिलते थे, तो इसने हमारे लाइफस्टाइल को चेंज किया. आज मुझे लगता है 80% 90% लोग या तो एलोवेरा आंवला या कुछ गिलोय या कुछ आयुर्वेदिक या कुछ ऐसा काम करे जिससे उन्हें लगता है कि मैं कोरोना से बच जाऊं. तो हेल्थ हाइजीन इंक्रीज हुई है, लोगों का अवेयरनेस इंक्रीज हुआ है. आज हेल्थ के प्रति बहुत लोग अवेयर हैं. तो या फिर एक्सरसाइज हुआ या हेल्दी लाइफस्टाइल हुआ. आज आई थिंक पिज्जा बर्गर और मॉल ये सारे कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना. तो माय टेक होम मैसेज वुड बी वी शुड सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस आल्सो, कि हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, हमने सैनिटाइजेशन पे जोर दिया, हमने मास्क पे जोर दिया, हेल्थ हाइजीन पे जोर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना. कि कोरोना की वजह से हमने लाइफस्टाइल को चेंज किया. हम फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान दे रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए. घर पे बैठे बैठे होम वर्क एट होम या होम केयर कर रहे हैं, तो हमें फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देना चाहिए. तो आई थिंक टेक होम मैसेज इज फर्स्ट, डोंट पैनिक ऑफ कोरोना, हेल्प कोरोना पेशेंट्स. अगर आपको कोरोना हुआ है तो आप प्लाज्मा डोनेट करो ताकि दूसरे कोरोना की भी आप मदद कर सको. और हेल्थ हाइजीन, अभी जो हमने अडॉप्ट किया हेल्थ हाइजीन, जो कोरोना के डर से ये किया, इसको हम मेंटेन रखिए. Right. Thank you. So I would like to end